क्वाड के सदस्य देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य सक्रियता की पृष्ठभूमि में समुद्री निगरानी और बंदरगाह अवसंरचना को मजबूत करने के लिए मंगलवार को नए उपायों की घोषणा की और साथ ही महत्वपूर्ण खनिजों और ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार किया। इन नए उपायों की घोषणा नई दिल्ली में समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद की गई। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की। इसमें अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी शामिल हुए। क्वाड के सदस्य देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य सक्रियता की पृष्ठभूमि में समुद्री निगरानी और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए मंगलवार को नए उपायों की घोषणा की और महत्वपूर्ण खनिजों और ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार भी किया। क्वाड के विदेश मंत्रियों ने बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वक्तव्य दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, बैठक में ज्यादातर चर्चाएं दुनिया के मौजूदा हालात पर ही केंद्रित थी। हमने स्वाभाविक रूप से इंडो पैसिफिक से जुड़े खास मुद्दों पर ध्यान दिया, क्योंकि हम 4 समुद्री लोकतंत्र हैं जो इंडो पैसिफिक के अलग अलग छोर पर हैं, इसलिए विचारों का आदान प्रदान काफी महत्वपूर्ण था। समुद्री क्षेत्र में सहयोग लगातार बढ़ा है, जिसमें निगरानी और डोमेन जागरूकता, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, अंडर सी केबल, ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग और HADR एक्टिविटीज शामिल हैं। हम आने वाले समय में इन क्षेत्रों को और गहरा करते रहेंगे। Being Quad, we naturally focused on issues of particular relevance to the Indo-Pacific. Because we are 4 maritime democracies located at different ends of the Indo-Pacific, the exchange of perspectives was an exercise of considerable value. The maritime domain has seen a steady expansion of collaboration, including surveillance and domain awareness, logistics network, undersea cables, training, capacity building, and HADR activities. We will be continuing to deepen these areas in the times ahead. We spent some time on the question of safe and unimpeded maritime commerce and reaffirmed the significance of scrupulously observing international law. Our 4 nations are also market economies. We believe strongly that economic resilience should be promoted, that supply chains should be strengthened, trusted and secure technologies diffused, and production capacities enhanced. Our deliberations touched on the current energy and fertilizer availability, as well as that of critical minerals and resources. As democratic nations, we also devoted attention to countering the common threat of terrorism. There must be zero tolerance for terrorism, and nations subject to terrorist attacks have the right to defend themselves. और क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वक्तव्य में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि हमने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग पहल शुरू करने का फैसला किया है। साथ ही उन्होंने क्वाड देशों के बीच हिंद प्रशांत समुद्री क्षेत्र जागरूकता पहल के विस्तार की भी घोषणा की। And I'm very happy today that as a result of the work that our teams have been doing leading up to this conversation today and our conversations today, we have real concrete achievables that we can announce to our respective countries and to the world. On the issue of maritime security, there are 2 big announcements. The first is the launch of the Indo-Pacific Maritime Surveillance Corporation Initiative, which is going to leverage each of our countries' maritime surveillance capabilities in the Indo-Pacific to enhance information sharing. Related to that, of course, is also the expansion of the Indo-Pacific Maritime Domain Awareness Initiative, which provides and can provide near real-time commercial maritime domain awareness data to countries throughout the Indo-Pacific. ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने इस दौरान कहा कि आज क्वाड कई नई पहलों और ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ी पहलों को आगे बढ़ा रहा है। उन्होंने क्वाड की तरफ से प्रशांत क्षेत्र के लिए अब तक की सबसे मजबूत प्रतिबद्धता की भी घोषणा की। Quad is today taking forward a number of new initiatives, an energy security initiative, and of course our continued work on critical minerals, because we understand that secure and reliable supply chains are a precondition to economic and strategic stability.
We are also today announcing the strongest ever commitment from the Quad to the Pacific through the Quad Ports of the Future Partnership, where we are launching a pilot for port infrastructure in Fiji. And I was in Fiji just a couple of weeks ago, and I know how important this will be to that country. It's a practical demonstration of our collective ability to deliver high-quality, resilient infrastructure in partnership with the region and in response to Pacific priorities. The outcomes we've delivered to date is that we are delivering as a collective undersea cables to all Pacific Island Forum countries, which enhances economic opportunities. We are also working together to strengthen cooperation against scam centres, particularly in Southeast Asia, building law enforcement capacity and deepening cyber cooperation. These are just some of the measures, practical measures, Quad countries are engaged in. We know we are stronger when we work together. We know we work better in partnership across our region, and we work best by listening to the priorities of our region and delivering practical outcomes to make a difference to our people's lives. क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी संयुक्त प्रेस वक्तव्य में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने कहा कि आज की बैठक ने यह स्पष्ट और अटल संदेश देने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया है कि क्वाड आवश्यक और ठोस सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि स्पष्ट और व्यापक विचार विमर्श के जरिए ही सदस्य देशों ने क्षेत्रीय घटनाक्रमों को लेकर अपनी रणनीतिक समझ को और मजबूत किया और बल प्रयोग या दबाव के जरिए एक तरफा तरीके से यथास्थिति बदलने के किसी भी प्रयास का कड़ा विरोध करने पर सहमति जताई। Of the Indo-Pacific should strengthen the resiliency and the capacity to determine their own future. Today's meeting gave us a good opportunity to send an unswerving and unshaken message that the Quad will advance the necessary concrete cooperation for this. Also today, through frank exchange of views, we were able to align our strategic perceptions on regional developments and agreed to strongly oppose attempts to unilaterally change the status quo by force or coercion. We shared deep concern over the export restrictions of critical minerals and others as well. क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक और कई मायनों में अहम रही। इस दौरान भारत और अमेरिका के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। महत्वपूर्ण खनिजों के मुद्दों को लेकर आपूर्ति श्रृंखला को और मजबूत करने के लिए क्वाड महत्वपूर्ण खनिज ढांचे का शुभारंभ हुआ है। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि आज हमने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ तत्वों की माइनिंग और प्रोसेसिंग की सप्लाई को सुरक्षित करने के लिए भारत अमेरिका के बीच एक द्विपक्षीय फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए हैं। इस बारे में हमने आज क्वाड मीटिंग में भी चर्चा की है, चाहे हम इसे द्विपक्षीय रूप से करें या क्वाड फॉर्मेट में। ये फिर समान सोच वाले देशों के एक बड़े समूह के तौर पर ये एक बहुत ही सही समय पर उठाया गया और बेहद महत्वपूर्ण कदम है। Critical minerals and rare earths. This is something which we have also discussed today at the Quad meeting, and whether we're doing it bilaterally, whether we're doing it as a Quad format, or in fact as a larger gathering of like-minded nations, it is clearly something very timely, something very important, something very critical today. Now, this particular framework aims to deepen our cooperation across the entire critical minerals and rare earth supply chain, including mining, processing, recycling, and related investments. It will certainly strengthen resilient and diversified supply chains. It will help us to collaborate in financing and in the effective management of critical minerals and rare earth scrap. अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि हम दो ऐसे देश हैं जिनके रणनीतिक हित इस बात में हैं कि हमें जरूरी खनिजों और सप्लाई चेन तक भरोसेमंद और लंबे समय तक पहुंच मिलती रहे, जो हमारी इनोवेशन इकोनॉमी के लिए बहुत अहम है। इसकी नींव 4 फरवरी को रखी गई थी, जब आप वॉशिंगटन डीसी में हमारे द्वारा आयोजित क्रिटिकल मिनरल्स फोरम में हमारे साथ शामिल हुए थे। Now today, because we both have a strategic and shared interest in the fact that vibrant innovation economies such as ours cannot afford to leave the foundational materials of these industries vulnerable to single source monopolies that could deny us these things
not just in a time of conflict, but as a leverage point in contrary to our sovereign national interests. So it's a pleasure to be here today, and I'm glad we were able to sign this because in addition to being an important document and an important agreement, I think it brings a tangible example of the strategic partnership between the United States and India. Thank you. और क्वाड 2026 की इस बैठक और जो तमाम अहम एक तरह से कदम उठाए गए हैं, पहलों की शुरुआत हुई है क्वाड के तहत, उसी पर और बात करने के लिए प्रोफेसर संजय भारद्वाज जो स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज JNU से हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही हमारे साथी संवाददाता अखिलेश सुमन जी भी जुड़ रहे हैं। अखिलेश जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहेंगे और ये जानना चाहेंगे कि क्वाड अपनी मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों के लिहाज से पिछली क्वाड बैठकों से इस बार अलग कहा जा रहा था, क्या जो तमाम एक तरह से जो ज्वाइंट वक्तव्य दिया गया है उसमें भी जो कुछ कदम उठाए गए हैं, चाहे वो इंडो पैसिफिक को लेकर हो, क्रिटिकल मिनरल्स भले ही भारत और अमेरिका के बीच में है, लेकिन संदर्भ ये कहा गया कि चाहे वो क्वाड देशों के बीच का हो या द्विपक्षीय हो, लेकिन इस दिशा में एक बड़ा कदम है। किस तरह से आप एक तरह से इसकी समीक्षा करेंगे इसके अलग होने की? देखिए रितु, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि पिछले 1 वर्षों से लग रहा था जिस समय से डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने और जिस तरीके से उन्होंने पूरी दुनिया पे एक तरीके से टैरिफ युद्ध छेड़ रखा था, उस समय लगा था कि क्वाड को उन्होंने बैक बर्नर पर डाल दिया है। मित्र देश कहें, जो कम मित्र देश है, उन सब के साथ उनका वही बर्ताव था और क्वाड के ये अन्य जो 3 देश हैं अमेरिका के अलावा, उन तीनों देशों पर भी उन्होंने भारी टैरिफ लगाए थे। तो एक तरह की व्यापारिक अनिश्चितता बनी हुई थी पूरी दुनिया में और क्वाड भी उससे काफ़ी हद तक प्रभावित हुआ था। लेकिन मुझे लगता है कि अब ऐसी स्थिति में अमेरिका अपने आप को पा रहा है कि जो क्वाड को मजबूत बनाने में एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की एक अहम भूमिका रही थी जब वो पहली बार राष्ट्रपति बने थे अमेरिका के, और उस क्वाड को फिर से बैक टू बेसिक्स ले जाने में इस बार का जो विदेश मंत्रियों का सम्मेलन हुआ है, विदेश मंत्रियों की जो बैठक हुई है, वो उसे और आगे ले जाने के लिए दिख रहा है, वो उसके लिए उत्सुक दिख रहा है। और ख़ास तौर पे जो क्रिटिकल मिनरल्स की बात है, एनर्जी सिक्योरिटी की बात है, जो पोर्ट डेवलपमेंट की बात है, क्रिटिकल पोर्ट डेवलपमेंट की बात है, ये 3 जो ऐसे क्षेत्र को मैं गिनाऊंगा कि इन तीनों क्षेत्रों में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और एक कह सकते हैं कि एक जो डायनेमिक्स बना है, इस डायनेमिक्स से काफ़ी उत्साहवर्धन हुआ है। $20 बिलियन का निवेश किया जाएगा क्रिटिकल मिनरल्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए वो क्वाड देशों के बीच में, और भारत और अमेरिका के बीच में भले ही एक द्विपक्षीय समझौता हुआ हो, लेकिन क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क की भी स्थापना हुई है जिसके तहत क्वाड के सदस्य एक दूसरे से सहयोग करेंगे और प्रोजेक्ट्स को फंड भी करेंगे, प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि कैसे एक दूसरे की क्षमताओं का उपयोग हो सकता है क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव में और क्रिटिकल मिनरल्स के पूरे विकेंद्रीकरण में, ताकि एक देश चाइना का मोनोपोली उस पर न बने। तो इस मामले में कहेंगे कि यह जो क्वाड की बैठक है वो पिछले दिनों के अन्य क्वाड बैठकों से ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड है और जो मौजूद सवाल है उसको एड्रेस करता है। दूसरी जो एक महत्वपूर्ण बात हुई एनर्जी सिक्योरिटी को लेके, जब आप पूरे स्टेटमेंट को देखेंगे तो उसमें स्टेटमेंट में एक बात खास तौर पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात कही गई है और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के साथ साथ कमर्शियल जो वेसल्स हैं उनके भी आवागमन की, मुक्त आवागमन की बात कही गई है, फोर्सिबली उसे न रोकने की बात कही गई है। तो आप जब देख रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रुका पड़ा है पूरी दुनिया का और खास करके इंडो पैसिफिक का जो फ्यूल एंड LPG सप्लाई चेन है वो प्रभावित हुआ है, तो ऐसे में क्वाड के ये जो बयान है और क्वाड का ये जो एक संयुक्त घोषणा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण लगता है। और तीसरा जो क्रिटिकल पोर्ट मैनेजमेंट और डेवलपमेंट की बात है, फिजी में भी इसका एक केंद्र स्थापित किया जाएगा। फिजी को दूर समुद्र में एक बड़ा केंद्र के रूप में स्थापित करने की बात है। तो मुझे लगता है कि ये 3 जो अहम बिंदु हैं, ये 3 अहम बिंदु जो हैं पिछले अन्य जो क्वाड बैठकें हुई हैं उससे एक आगे का कदम है और निश्चित तौर पे अगर इसी दिशा में क्वाड आगे बढ़ता है तो कह सकते हैं कि एक सकारात्मक सहयोग की स्थिति बनती है। जो क्वाड लग रहा था कि भटक गया है, अपने रास्ते खो चुका है, वो क्वाड जो है अब फिर से पटरी पे आ गया है। रितु जी, हमारे साथ प्रोफेसर संजय भारद्वाज भी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर साहब, भारत के लिए, जापान और ऑस्ट्रेलिया के लिए क्वाड हमेशा से महत्वपूर्ण था, अमेरिका इसे लेके कई तरह के बयान देता था। क्या आप ये मानते हैं कि मौजूदा परिस्थितियां जो बनी हैं और खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर और जिस तरह का अमेरिका का रुख रहा है उसने वैश्विक पूरी आर्थिक व्यवस्था को ही हिला दिया है, ऐसे में अमेरिका की एक जिम्मेदारी बन गई थी एक बड़ा संदेश देने की और इस मंच से दिया अमेरिका ने?
जी धन्यवाद। देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो पक्ष सामने उभर के आया और जो भारत चाहता था कि अमेरिका का जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का जो एक कॉन्सेप्ट था, जो एक परिभाषा थी, वो बहुत सीमित थी। भारत चाहता था कि जो अमेरिका बॉलीवुड से हॉलीवुड तक का इंडो पैसिफिक क्षेत्र मानता था, उसको अरबियन महासागर तक भी ले जाया जाए। और ये पहला जब अभी जो क्वाड फॉरेन मिनिस्टर का मीटिंग हो रहा है, इसमें इस बात का कंसर्न रखा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो ब्लॉकेज हो रहे हैं, जो अरेबियन सी में आता है, उसके ऊपर भी कंसर्न दिया गया। तो एक सबसे बड़ा अचीवमेंट भारत का इसमें ये हुआ कि भारत चाहता था कि इसका दायरा अरेबियन सी तक ले जाया जाए। तो ये पहला एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। दूसरा जो एक और पक्ष आता है कि अभी तक जो क्वाड का कॉन्सेप्ट था, वो अमेरिका और जापान और ऑस्ट्रेलिया चाहता था कि वो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स को डील करे, लेकिन और भारत हमेशा ये बात चाहता था कि उसको नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, जिसमें खासकर जब एनर्जी सिक्योरिटी की बात करते हैं, फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं, क्रिटिकल मिनरल्स की बात करते हैं, सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, इन क्षेत्रों में भी कोऑपरेशन हो। तो जो फॉरेन मिनिस्टर का आज मीटिंग हुआ है, निश्चित रूप से इन जो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इश्यूज है, उनको भी वरीयता दी गई है। तो तीसरी बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है, क्योंकि पूरा जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी है, वो फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक क्षेत्र की बात करते थे, फ्री नेविगेशनल राइट्स की बात करते थे। आज दुनिया क्रिटिकल स्टेज में है। जिस तरीके से अमेरिका ने नेवल और इकोनॉमिक ब्लॉकेड किया हुआ है, और ईरान ने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो ब्लॉकेड किया हुआ है, मुझे लगता है कि उसके ऊपर चिंता जताई गई है कि ये पूरा क्षेत्र जो है, ना केवल इंडो पैसिफिक फ्री एंड ओपन हो, ना केवल साउथ चाइना सी फ्री एंड जो अरेबियन सी है, वो भी फ्री और ओपन नेविगेशनल राइट्स को सप्लाई दूर किया जाए, और जो चौक पॉइंट्स क्रिएट हो गए हैं, उसके प्रति भी कंसर्न दिया गया। यानी कि जो न्यू नॉर्मल्स आ रहे हैं, चाहे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हो, बे बंदार में हो, या मलक्का स्ट्रेट में, इन चौक पॉइंट्स को एक तरीके से गंभीरता से लेके, और किसी भी डेवलपिंग इकोनॉमीज पे इसका बर्डन ना पड़े। खासकर जो ग्लोबल साउथ के कंट्रीज हैं, वो आज के दिन सफर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है जो एक संज्ञान लिया गया है इस फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग में और बायलैटरल टॉक में, तो वो एक बहुत बड़ा लैंडमार्क साबित होगा। मुझे लगता है दोबारा से, जो अखिलेश जी भी बात कह रहे थे, कि क्वाड को दोबारा से एक स्ट्रॉन्ग एक एनर्जी मिलेगी। जी प्रोफेसर संजय, इसमें भारत की बड़ी भूमिका रही, जिस तरह से आप बता रहे हैं, क्योंकि मल्टीलैटरल फोरम्स की प्रासंगिकता को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे थे। ऐसे में क्वाड को एक बार फिर सक्रिय ही सिर्फ नहीं, सक्रिय इन द सेंस कि उसमें जो कुछ बड़े निर्णय लिए गए हैं, चाहे वो इंडो पैसिफिक को लेके गए हो, क्रिटिकल मिनरल्स को लेके गए हो, इस पे चर्चा तो लंबे समय से हो रही थी। क्या आप मानते हैं कि दो बड़े ऐसे मुद्दे जिसको लेकर भारत ने एक दिशा दी है, अब वैश्विक चुनौती, सप्लाई चेन से, ये सब जो समस्याएं और भविष्य में बढ़ने ही वाली हैं? नहीं, निश्चित रूप से जो मैं वही बात कह रहा हूं कि जो जिस तरीके से क्वाड का एक ऑब्जेक्टिव क्रिएट किया गया था कि हम चाइना को कंटेन करने वाला, मुझे लगता है भारत उसको उसके बियॉन्ड देखने का प्रयास कर रहा था कि एक कंस्ट्रक्टिव कॉम्प्रिहेंसिव एक पार्टनरशिप डेवलप हो, और क्वाड का मकसद सिर्फ इंडो पैसिफिक और जो आसियान सेंट्रिक ना होकर पूरा अरेबियन सी में जाए। और इसमें जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है, भारत जो चाहता था, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा बात करते थे कि ये जो ह्यूमन सिक्योरिटी हो, स्टेट सेंट्रिक नहीं होनी चाहिए, ह्यूमन सेंट्रिक होनी चाहिए। और इसमें जो ग्लोबल कॉमन्स और ग्लोबल गुड्स के जो इश्यूज हैं, उनको वरीयता दी जाए। तो भारत का जिस तरीके से रोबियो विजिट किए हैं, बायलैटरल एग्रीमेंट्स किए, एमओयूज हुए हैं, तो निश्चित रूप से एक भारत की सेंट्रलिटी इस पूरे क्वाड में अब दिखाई दे रही है। मुझे लगता है भारत की भूमिका आगे आने वाले समय में बढ़ेगी, और इसको दुनिया जो डेवलपिंग कंट्री, जो डेवलप कंट्री, सब इसको एक्सेप्ट करेंगे कि भारत की भूमिका, क्योंकि भारत एक लॉ अबाइडिंग कंट्री है, यूएन चार्टर में विश्वास करता है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, और ये जितने भी क्वाड के कंट्रीज है, सब मैरीटाइम डेमोक्रेसीज है, ये भी इन्हीं वैल्यूज और इथोस में विश्वास करते हैं। तो भारत को इसका लीडरशिप इसमें आगे बढ़ाया जाए, और जो दुनिया में जिस तरीके के अनसर्टेनिटीज क्रिएट हो गई है, जो चाहे वो यूक्रेन रशिया वॉर को लेके हो, या ईरान अमेरिका वॉर को लेके हो, उनको भी भारत की सक्रिय भूमिका से उसको न्यूट्रलाइज करके और एक शांतिपूर्ण विश्व व्यवस्था की तरफ दुनिया को आगे बढ़ाना चाहिए। जी अखिलेश जी, इस मंच पे आतंकवाद को लेकर भी एक बार फिर जिक्र हुआ, और उसे किसी भी रूप में बर्दाश्त न करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई सभी देशों ने, लेकिन कुछ ठोस
बड़ा एक मंच की, क्योंकि वित्तीय जिस तरह का सहयोग आतंकवाद को मिल रहा है उस पर लगातार तमाम देश इसका विरोध कर रहे हैं। और हम जानते हैं कि हाल की प्रधानमंत्री की 5 देशों की यात्रा में भी हमने देखा कि कुछ देशों ने जिस तरह से कहा कि जो एक तरह से वित्त पोषण आतंकवाद को हो रहा है उस पर अब तमाम मजबूत लोकतंत्रों को एक साथ होने की जरूरत है। देखिए, निश्चित तौर पे आतंकवाद एक ऐसी समस्या है इस पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में, और उसके साथ साथ कहें तो अब अमेरिका और यूरोप भी उससे अछूता नहीं रह गया है। लंबे समय तक वे अछूते थे। इस बात को महसूस किया, यूरोप में भी कई आतंकवादी घटनाएं हुई, तो अब सबके जहन में है कि आतंकवाद के रहते हुए कोई भी ऐसा सहयोगात्मक कार्यक्रम नहीं हो सकता। इसीलिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बात को कहा कि आतंकवाद के मसले पे जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने को सभी देश तैयार हैं। लेकिन निश्चित तौर पे इसमें एक अड़चन तब आती है जब एक देश दूसरे देश को समझे कि वो उनका आतंकवादी है, लेकिन दूसरे देश के आतंकवादियों को वो उस तरीके से कंडेम नहीं करते या उस तरीके से उसके खिलाफ कार्रवाइयों में भाग नहीं लेते। तो निश्चित तौर पे एक ऐसा मंच, क्वाड एक ऐसा मंच है जिसमें कि इस तरह के डिफरेंसेज को दूर करने के लगातार प्रयास किए जाते हैं, और एक ऐसा एक स्वर बनता है, और एक स्वर ऐसा बनता है जिसमें कि आतंकवाद का जो वित्तीय पोषण है उस वित्तीय पोषण को रोका जाए, आतंकवाद का कोई नैतिक समर्थन न किया जाए, आतंकवाद को कोई राजनीतिक समर्थन न किया जाए, और ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करने वाले देशों और व्यक्तियों को उनको अलग थलने करने के प्रयास किए जाए। तो निश्चित तौर पे आज इस क्वाड की जो विदेश मंत्रियों की बैठक हुई उसमें भी आतंकवाद का मसला निश्चित तौर पे छाया रहा। इसके पहले हमने देखा कि जो 5 देशों की यात्रा पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे वहां भी आतंकवाद के मसले पे काफी चर्चा हुई, और उसके पहले आपको याद होगा कि ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की भी बैठक हुई थी, और ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में इन सारे मुद्दों पर चर्चा हुई थी। तो निश्चित तौर पर आतंकवाद को भारत एक ऐसे तरीके से आर्टिकुलेट करता रहा है जिससे कि तकरीबन सारे देश अब इस बात से सहमत हो गए हैं कि आतंकवाद के रहते हुए कोई रचनात्मक सहयोग और जो खास करके जो विकासशील देश है उन विकासशील देशों की प्रगति नहीं हो सकती है। इसलिए निश्चित तौर पे आतंकवाद के खिलाफ एक संयुक्त रणनीति की जरूरत है, और इसीलिए आज इस क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक में भी ये बात प्रतिध्वनित हुई। प्रोफेसर संजय, अंत में क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर जो एक बड़ा फ्रेमवर्क तैयार हुआ है, भारत की स्थिति क्या रहेगी? और क्योंकि लगातार चीन जिस तरह से क्रिटिकल मिनरल्स पर अपना एक अधिकार को, वैश्विक व्यवस्था को उथल पुथल या उसको डोमिनेट करने की एक पूरी कोशिश कर रहा है, उस दिशा में आज जो ये फ्रेमवर्क की पहल हुई है इसे आप किस तरह से देखते हैं? भारत इस जो क्रिटिकल मिनरल्स या जो नॉलेज डिवाइड है, या आप ये कहिए कि डिजिटल डिवाइड्स जो क्रिएट किए गए हैं और जो सेमीकंडक्टर का इशू, 4 बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से जुड़े हुए हैं, जो विकास से जुड़े हुए हैं। तो निश्चित रूप से भारत की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, और जिस तरीके का एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया है तो भारत एक पोजीशन में आया है कि आप हमारे भारत का रणनीतिक इस्तेमाल ना करके आप दूसरे जो विषय हैं डेवलपमेंट और विकास के मुद्दे हैं उनको भी पूरी वरीयता दी जानी चाहिए। एक और पक्ष इसमें जो उभर के आया महत्वपूर्ण, कि जो भारत हमेशा सागर एक जो अपनी स्ट्रेटेजी थी उसको महासागर के रूप में, तो ये भी पक्ष आया है कि अक्रॉस द रीजन कोऑपरेशन होना चाहिए, चाहे वो मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेके हो, स्पेस सिक्योरिटी को लेके हो, AI को लेके हो, या बाकी जो टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशंस की बात है। तो बेसिकली अक्रॉस द रीजन में आप चाहे इंडो पैसिफिक रीजन हो, या इंडियन ओशन हो, अरबिक सी हो, या बियॉन्ड इसके हो, इन सब के बीच में बराबर का सहयोग होना चाहिए, ताकि जो क्वाड का ऑब्जेक्टिव है, जो क्वाड में लीडिंग डेमोक्रेसीज हैं दुनिया में, और एक तरीके से आसियान का जो सेंट्रलिटी किया हुआ था, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए फोकस हो रहा था, मुझे लगता है उसको एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है। उसका मुझे लगता है मानवता के हित के लिए, चाहे वो आप क्रिटिकल मिनरल्स की बात हो या न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की बात हो, या बहुत सारे जो इश्यूज हैं, ये सब इसमें एक महत्वपूर्ण एक अपनी वस्तु स्थिति और अपनी सेंट्रलिटी बनाएंगे क्वाड की पूरी मीटिंग। जी हाँ, क्वाड के मंच ने एक बार फिर दुनिया को एक बड़े संदेश दिए हैं आज इस बैठक के बाद। जिस तरह से घोषणा पत्र में हम बात करें तो समुद्र से लेकर मिनरल्स तक के जो कई ऐसी बड़ी पहल की गई है, साथ ही साथ उन देशों को भी साफ साफ संकेत और चेताया गया है कि एक अधिकार और आक्रामक राजनीति के साथ इन क्षेत्रों में
वैश्विक स्तर पर काम नहीं किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी आपका भी और प्रोफेसर संजय आपका भी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ और खबरें। देखते रहिए